मोना गवळी। एक ने भी नहीं दिया था? नहीं। ओके सॉरी, हाँ कल लेट हुआ सर। हाँ, उसके पहले किसका हुआ था लास्ट? मेरा हुआ था सर, मोना गवळी। ओके, आपका मोना, मोना गौरी। ओके, नेक्स्ट निखिल। निखिल ओमकार। निखिल। ओके, नहीं, यस निखिल, निखिल पुजारी। यू कैन कंटिन्यू। Hello sir. हम्म, Good morning all. Today I am discussing about the architecture of Java. In architecture of Java consists of JDE kit. This is nothing but Java development kit. In that kit there are two main parts. There one is DevTools and another is JRE. That is Java runtime environment. When the user make the .java extraction file, we need to check that file syntax correct is or not. This is completed with the help of the compiler. Compiler takes that .java extension file and compile at a time. When it is correct, it converted into dot class file. This is called nothing but bytecode. But when this is not correct, this shows the compilation error. After that, completed of .java class file that must be checked by the JVM machine. At the same time, JVM take one line from that .class file, and with the help of the system libraries, it transfer to that operating system. And after the operating system gives the acknowledgement of that file, it goes back to the JVM. At time, interpreter works. Interpreter takes second line and forward to that JVM machine. This makes less load of that JVM machine. That's it, sir. okay, good. Next, Pallavi. पल्लवी उपाध्याय। नहीं, नेक्स्ट परेश वाडेकर। Yes, sir. So today I will talk about retesting. Yes, पल्लवी। ओके, पल्लवी आपने किया, आपको करना है? नहीं, ओके परेश, कंटिन्यू। Yeah. So I work as a SIT tester in my organization. And, whenever we, as a SIT tester, we perform various system and functional testing, and we write test cases and execute test cases. And for retesting, what we do is we check the same functionality with multiple input data that we call as a retesting. Second case is whenever we detect any defect or a bug, we create that defect in a Jira. Jira is a software project management tool which we use in our organization for tracking our all project related activities. So whenever we create a defect in Jira, and we will inform developer via email from Jira tool itself, and then developer will look into that defect. He will solve that defect, whatever the problem is there. He will modify his code, and once he modified code and everything is correct, he will again inform to testing team. So after the defect is fixed, we will check again whether the defect is fixed or not. So this checking again is also called as a retesting, because I'm checking the same functionality again to check whether that defect is fixed or not. So this is retesting, and along with this, we also do regression testing, because what happens is whenever developer modifies the code, there is a possibility that it might have impact on some other related functionality or modules. So checking this impact on the related functionality or module, other sub modules, is also called as a regression testing. So for regression testing, we don't write any test cases. In regression testing, we follow. ओके। दोनों एक्सप्लेन किया, जावा का टॉपिक जो आपने एक्सप्लेन किया, बढ़िया स्टडी है, कंटिन्यू रखें।
और ऑब्वियसली ऐसे कभी कभी अपना टर्न नहीं होता ना, तो आपको अगर सडनली कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए बोला जाए तो वहां पे आपको जितना जो चीजें याद आती है वो बोलते जाइए, बट ऐसा पॉज अगर लेंगे ना थोड़ा आगे वाला ही जाता है। पॉज लेने से अच्छा कंटिन्यूशन, जो आपको याद आता है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, याद आएगा वो तो कर सकते हैं ना, तो टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, उस टॉपिक को बात करते जाइए तो हो जाता है उसी में भी। ठीक है, याद रखिए जितने हर दिन आप मॉक करिए, हर दिन मॉक करना है, जितना हर दिन मॉक करेंगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस टॉपिक के ऊपर और उतना आप बढ़िया दे सकेंगे। क्योंकि इंटरव्यू याद रखिए कभी भी 10 अगर उसने 20 क्वेश्चन लिए पूछा है, 20 के 20 क्वेश्चन आपको आना चाहिए ऐसा मैंडेटरी नहीं होता, बट 10-15 क्वेश्चन है उसमें से 2-3 नहीं आए तभी डाउन जरूर होगा, बट वो 10-15 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, लगना चाहिए कि यार बंदा कॉन्फिडेंट है उसके नॉलेज में, उसके उस चीज में, बस ये चेक किया जाता है। ठीक है, ये हो गया, यानी पहला टेक राउंड रहता है, टेक्निकल बंदा लेता है जिसको टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, टेक्निकल जब आंसर देंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरे कोई चीज पूछता ही नहीं वो। ठीक है, तो पहले इसके ऊपर करें सभी जन। ठीक, ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ अवर सेशन। तो लास्ट सेशन हमने क्या देखा था? लास्ट सेशन हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन में हमारा डिलीवरी डिप्लॉयमेंट कब होता है, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारा जो भी डेवलपर एक यूजर स्टोरी के अगेंस्ट डेवलपमेंट करता है, वो यूजर स्टोरी के उस यूजर स्टोरी के साथ पैरेलली हम जैसे डेवलपर का डेवलपमेंट है, पैरेलली हम टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं। जैसे डेवलपर का पूरा कोडिंग हो गया, बाद में देता है हम, तो हम उसके ऊपर टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं। करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टेस्टिंग्स हैं। चाइनीज स्मोक में हम कभी टेस्ट केसेस नहीं एग्जीक्यूट करते जो हमने लिखे हैं, क्योंकि उसमें बस बिल्ड चेक करते हैं। जैसे टेबल हमें समझ में आया, तो जो भी हमने टेस्ट केसेस लिखे हैं वो टेस्ट केसेस हम एग्जीक्यूट करते हैं इन द सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। तो जैसे अगले चल रहा है और के बाद जैसे सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग एंड रीटेस्ट करेंगे, तो जो इसमें अगर कुछ हमें डिफेक्ट मिला तो डेवलपर को वापस भेजेंगे, डेवलपर करेगा दोबारा मॉडिफाइड बिल्ड भेज। जब उसने डेवलपर से मॉडिफाइड बिल्ड भेजा तो ऊपर हम दोबारा रीटेस्टिंग है। अब ऐसे एक यूजर का पूरा काम कंप्लीट होने के बाद वो यूजर स्टोरी हम यूएटी को भेजेंगे टेस्टिंग करने के लिए। फिर यूएटी का रिस्पेक्टिव टेस्ट परफॉर्म करेगा, तो सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग तो कुछ करता है, बस वो एंड यूजर की प्रोस्पेक्टिव चीजें चेक करता है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, सभी को आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it is audible? Yes, sir. Okay. तो जैसे डेवलपर एक यूजर स्टोरी के अगेंस्ट जैसे हमारा एसआईटी खत्म हो गया तो हम वो रिस्पेक्टिव इन्फॉर्म करते हैं यूएटी टीम को। डेवलपर वही कोड क्या करता है, ही विल सेंड दिस कोड इनटू द एसआईटी में उसने सेंड किया था, अभी वो यूएटी में करेगा। तो यूएटी टेस्टर टेस्टिंग करने के बाद वो किसके प्रोस्पेक्टिव टेस्टिंग करता है, क्लाइंट या सॉरी एंड यूजर के प्रोस्पेक्टिव। जैसे वो टेस्टिंग खत्म हो गई तो हमें एक स्प्रिंट में अगर हमें 4 यूजर स्टोरीज मिले हैं तो 4 स्टोरी के अगेंस्ट डेवलपर डेवलप करेगा, एसआईटी टेस्टर टेस्ट करेगा, सेम पैरेलली यूएटी टेस्टर भी टेस्ट करेगा। और वो होने के बाद हमारे कंपनी में एक डिलीवरी डिप्लॉयमेंट का ड्यूरेशन रहता है। तो याद रखिए आपके प्रोजेक्ट में डिलीवरी डिप्लॉयमेंट का ड्यूरेशन आइदर वो फ्राइडे था या अर्ली सॉरी जो आपका वर्किंग फ्राइडे है वो था या नेक्स्ट स्प्रिंट का मंडे था, ये दोनों में से कोई आप एक बोल सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन इश्यू। प्रोडक्शन इश्यू नहीं, समझो आपने डिप्लॉयमेंट तो कर दिया, म्यूट करिए जिनका म्यूट नहीं है। समझो हमने फ्राइडे को डिप्लॉय कर दिया क्लाइंट के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। डिप्लॉय होने के बाद अब हम नेक्स्ट स्प्रिंट में काम कर रहे हैं और नेक्स्ट स्प्रिंट में समझो आज मंगलवार बुधवार गुरुवार आ गया और गुरुवार के दिन उनके इधर जो भी हमने लास्ट वीक में डिप्लॉय किया था उसको कोई तो यूज कर रहा है और वहां पे कोई डिफेक्ट ऑफर हुआ, तो ऐसे इश्यू को हम बोलते हैं प्रोडक्शन इश्यू। प्रोडक्शन इश्यू आने के बाद क्लाइंट की तरफ से क्लाइंट हमें डायरेक्टली एक्सलेशन मेल भेज देता है। क्लाइंट हमें डायरेक्टली एक्सलेशन मेल भेज देता है। ये कब भेजता है, समझो प्रोडक्शन इश्यू ऑकर हुआ है कंपनी के साइड से। अगर कंपनी के साइड से प्रोडक्शन इश्यू ऑकर हुआ है तो डायरेक्टली क्या करता है क्लाइंट, हमें एक्सलेशन मेल जरूर भेज देता है। अब अगर हमारे साइड से है तो उस प्रोडक्शन इश्यू को हम बोलते हैं हॉट फिक्स, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी फिक्स करना इसको हॉट फिक्स बोला जाता है। तो हमारा काम क्या रहता है, टेस्टर का काम उस डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस करके देखना इन द एसआईटी एनवायरनमेंट।
जब हमें लगा कि वो डिफेक्ट एसआईटी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो यानी हमारे साइड से टेस्टिंग में मिस हुआ, तो हम तुरंत डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजाइनर सभी को इन्फॉर्म करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर डिजाइनर डेवलपर को बोलता है इसको जितना जल्दी हो सके फिक्स करो, और फिक्स करके डेवलपर हमें दोबारा देता है टेस्टिंग करने के लिए, हम टेस्ट करते हैं और डेवलपर डिप्लॉय कर देता है प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे, आपकी गलती थी इसलिए आपको एक अपोलॉजी मेल उसको सेंड करना पड़ता है, रिप्लाई करना पड़ता है। ये कंपनी की प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजर को भी बताना पड़ता है क्या हुआ था, क्या गलती हुई थी, इसीलिए चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट आता है, समझो हमने क्लाइंट, समझो दूसरा सिनेरियो, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफर हुआ तो एसआईटी टेस्टर का काम होता है कि उस डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस करके देखना एसआईटी में। समझो एसआईटी में डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, यानी फंक्शनलिटी सभी बराबर वर्किंग है एसआईटी एनवायरनमेंट में, तो हमारा काम होता है एसआईटी टेस्टर का डेवलपर, डिजाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर को अगेन इन्फॉर्म करना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इन्फॉर्म करता है डिजाइनर, डेवलपर को एसआईटी में नहीं है तो आप एक बार डिप्लॉयमेंट प्रोसेस चेक करो, क्योंकि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस की वजह से ही डिफेक्ट ऑफर हो सकता है। फिर डेवलपर उनका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस चेक करेंगे एंड डिप्लॉय करेंगे अगेन इनटू द प्रोडक्शन। तो वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर डेवलपर से अपोलॉजी में लिख के लेता है, क्योंकि उसकी गलती थी, प्रोडक्शन में डिफेक्ट उसकी वजह से आया। ये हो गए अगर डिफेक्ट आपके कंपनी के साइड से होता है। दूसरा सिनेरियो, अगर डिफेक्ट ऑफर होता है क्लाइंट के साइड, क्लाइंट के साइड से भी हो सकता है ना, तब क्या किया जाता है, उस प्रोडक्शन इश्यू को बोला जाता है चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट कब आता है, क्लाइंट साइड से। तो हमने आजाइल में देखा था, अगर कुछ भी चेंज रिक्वेस्ट क्लाइंट हमें कभी भी भेज सकता है, बट हम कभी भी उसको एक्सेप्ट जरूर करेंगे, बट हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करेगा कि उस रिस्पेक्टिव सीआर का कितना इम्पैक्ट हो रहा है, करंट डेवलपमेंट, करंट टेस्टिंग एंड जो एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोडक्शन में उसके ऊपर। अगर उसका इम्पैक्ट लेस है तो करंट स्प्रिंट में उसको डेवलप करेंगे। अगर इम्पैक्ट ज्यादा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा क्लाइंट को इस सीआर का इम्पैक्ट ज्यादा है, तो आइदर उसको हम नेक्स्ट स्प्रिंट में कंप्लीट करें या करंट स्प्रिंट में कंप्लीट करें। तो ये चीजें चलती है रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्शन इश्यू ऑफर होता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट, सर डिफेक्ट रिप्रोड्यूस करना मींस क्या होता है? आवाज आ रहा? हेलो सर। हेलो सर डिफेक्ट रिप्रोड्यूस करना मींस क्या होता है? चेक करूं, जैसे यहाँ पे यूवीटी भी हमने क्या किया था, यूवीटी टेस्टर को जब डिफेक्ट मिला था हम उसको क्या कर रहे थे, डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस कर रहे थे। रिप्रोड्यूस करना यानी डिफेक्ट आइदर एसआईटी में है या नहीं वो चेक करना। एसआईटी टेस्टर जैसे यूवीटी को भी मिलता है ना, यूवीटी को भी जब डिफेक्ट मिलता है यूवीटी एनवायरनमेंट में, तो हम एसआईटी टेस्टर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस द डिफेक्ट इन द एसआईटी एनवायरनमेंट। यानी इसका मीनिंग होता है एक कि वो डिफेक्ट प्रेजेंट है या नहीं इन एसआईटी एनवायरनमेंट। एसआईटी एनवायरनमेंट में वो डिफेक्ट प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करना, उसको बोला जाता है रिप्रोड्यूस करके देखना। क्योंकि आपने तो ऑलरेडी टेस्ट किया है कि नहीं उस फंक्शनलिटी को, किया है? यस सर। एसआईटी एनवायरनमेंट तो हमने किया है ना, बट अगर वो गलती, अगर वो ऑकर होता है, उसको मिल रहा है यानी उसका मीनिंग है मे बी हमारे साइड से मिस हो सकता है। तो हमारा काम रहता है तो अगर हमारे साइड से मिस हुआ है नहीं चेक करना, इसलिए डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस करना है नहीं चेक करना, आइदर दिस डिफेक्ट प्रेजेंट इन द एसआईटी एनवायरनमेंट या नॉट। या अदरवाइज ऐसे भी बोल सकते हो कि हमने बराबर तो टेस्ट किया है या नहीं ये चेक करना, ठीक है। सर यूएटी पर्सन टेस्ट केसेस डिजाइन करता है क्या? आपको कैसा रहता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट रहता है। मेजोरिटी यूवीटी टेस्टर को टेस्ट केसेस यानी क्लाइंट के, हमारे प्रोजेक्ट में तो क्लाइंट साइड का बंदा है वो, तो मेजोरिटी को कभी टेस्ट केसेस डिजाइन नहीं करता। क्यों नहीं करता? रिक्वायरमेंट हाँ हमें ज्यादा पता है, उनको ज्यादा पता है, उनको ज्यादा पता है, यूवीटी पर्सन को ज्यादा पता है, बराबर। तो इसलिए वो क्या करता है, उतने सारे टेस्ट केसेस कभी लिखता नहीं है, ये नहीं करता मेजॉरिटी, ठीक। सर जसं की बिल्ड एसआयटी मध्ये जेन्किन जॉब थ्रू डिप्लॉय केलं जातं तसं यूएटी मध्ये पण जेन्किन जॉब थ्रू डिप्लॉय, यूएटी में भी और प्रोडक्शन में भी, यूएटी में भी और प्रोडक्शन में भी डिप्लॉय करना है तो जेन्किन जॉब के थ्रू किया जाता है, दूसरा वे नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और
क्लियर है ये? ओके, मेरा आवाज आ रहा है ना? हो गया क्वेश्चन? सर ये टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहता है? टेस्ट प्रूफ हम मैनुअल 2 में देखेंगे, मैं प्रिपेयर करके दिखा दूंगा। सिंपली अगर एक टेस्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट में आपने जो टेस्ट केसेस लिखे हैं वो टेस्ट केस रहेंगे, प्लस जो फंक्शनैलिटी आपने एग्जीक्यूट किया है, टेस्ट केसेस लिख के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है ना। यानी समझो आपने लिखा है टेस्ट केस, वेरीफाई द लॉग इन पेज बाय पासिंग द वैलिड मोबाइल नंबर, वेरीफाई द लॉग इन पेज बाय पासिंग द एयरटेल वैलिड मोबाइल नंबर। तो एयरटेल का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपकी फंक्शनैलिटी उस मोबाइल नंबर को एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये आपका स्क्रीनशॉट होना चाहिए फंक्शनैलिटी का, और वो हम उस डॉक्यूमेंट में अटैच करते हैं। तो टेस्ट केसेस स्क्रीनशॉट, टेस्ट केसेस स्क्रीनशॉट, ऐसा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है सर, ते बीटा टेस्टिंग मध्ये नाही का तुम्ही म्हणले होते इन यूटी एन्व्हायरमेंट डेव्हलपर अँड टेस्टर नॉट प्रेझेंट, एकदा सांगाल का पुन्हा? ये देखिए, ये प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन में बीटा टेस्टिंग होती है। आपने आपको एग्जांपल क्या दिया था, एडोब एप्लीकेशन है समझो। इस एडोब एप्लीकेशन में समझो अगर कुछ इश्यू आया, इश्यू ये आया कि आपका पीडीएफ ये वर्किंग नहीं हो रहा, आपका पीडीएफ क्या हो रहा है, वर्किंग नहीं हो रहा है, पीडीएफ में आप कुछ चीजों को एडिट या हाईलाइट नहीं कर पा रहे, तो आप इश्यू रेज कर सकते हैं कि इश्यू समझो आपने रेज भी कर दिया एडोब को, तो इश्यू क्या तुरंत के तुरंत रिजॉल्व होगा क्या 1-2 घंटे में? जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, फ्लिपकार्ट में अगर कुछ इश्यू आता है तो आप कंप्लेन रेज कर दीजिए, विद इन देखिए 3-4 घंटे में इश्यू फिक्स हो जाता है। बट इससे एडोब का होगा क्या इश्यू आपका तुरंत के 3-4 घंटे में? होगा क्या? नो, नहीं होता, इश्यू रिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब ये कब होता है? फिर नेक्स्ट वर्जन में होता है। नेक्स्ट वर्जन का मीनिंग क्या है? क्योंकि वहां पे जो आपके डेवलपर्स है, डेवलपर टेस्टर्स अवेलेबल नहीं है, इसी के लिए वो चीज क्या होता है, नेक्स्ट जो भी आपका अपडेट आएगा एडाप्टर में, उसी में वो फिक्स होके आता है। वो बाद में दिया जाता है समझो, बाद में वो उसके ऊपर टीम काम करती है। पहले सभी चीजें कलेक्ट किया जाता है कि क्या क्या डिफेक्ट्स अभी आए हैं प्रोडक्शन में, जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स एक जगह पे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर कुछ नया अपडेट आ रहा है एडाप्टर में, तो दोनों को डेवलप करके नया प्रोडक्ट भेज देते हैं, यानी नया अपडेट आपको आता है। एडाप्टर का वर्जन चेंज हो गया, पहले 8 वर्जन था, अभी 9 वर्जन आ गया, ऐसा किया जाता है। सर पण त्यामध्ये डेव्हलपर टेस्टर त्यांचे स्वतःचे असतील ना, म्हणजे नंतर करतील ते म्हणा? डेवलपर टेस्टर यानी यूवीटी में काम करने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यूवीटी में अगर समझो यूवीटी यहाँ पे हमारे कंपनी के साइड के 2 लोग गए हैं ऑन साइड काम करने के लिए, और एक क्लाइंट के इधर का खुद का टेस्टर है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी इश्यू आता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, हमारा यूएसए और इंडिया की बात अगर करें, 8-9 घंटे का डिफरेंस है, बराबर, एक एग्जाम्पल पकड़ा, 8-9 घंटे का डिफरेंस है। तो उनकी हमारी इधर सुबह, तो उनकी इधर समझो रात है, एग्जाम्पल। अब उनकी इधर सुबह तो हमारी इधर रात है। अब उनकी सुबह में समझे कि इश्यू आ गया प्रोडक्शन में, और हम इधर रात के 12 बजे है, तो क्लाइंट तो हमें कॉल नहीं कर सकता। रात के 12 बजे क्या क्या कौन फोन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा, बराबर। तो ऑब्वियसली उस एप्लीकेशन में इश्यू है, तो इश्यू क्या दिन भर रहेगा क्या फिर? क्योंकि हमारे इधर तो 7 बजे या 10 बजे से ऊपर हम पहले काम नहीं करेंगे, लेकिन 7-8 घंटे तो डिफेक्ट रहेगा ना प्रोडक्शन में, तो वो ना हो इसलिए कंपनी क्या करती है, क्लाइंट क्या करता है, कंपनी के 2 डेवलपर्स और मे बी कंपनी के भी कुछ टेस्टर्स वो क्लाइंट साइड बुलाता है काम करने के लिए। बट आपके प्रोजेक्ट में सिनेरियो ऐसा है, 2 लोग डेवलपर आपके कंपनी से है, बट जो टेस्टर है वो खुद क्लाइंट साइड का है, तुम्हारी कंपनी से नहीं बुलाया। तो अगर प्रोडक्शन में भी कुछ इश्यू आता है, तो ये हमारे 2 डेवलपर है ना वहाँ पे फिक्स करने के लिए। तो ये डेवलपर क्या करते हैं, अगर कुछ प्रोडक्शन में इश्यू आता है तो उसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर कुछ डिफेक्ट आया तो रिजॉल्व हो सकता है, यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि यूईटी में क्लाइंट की तरह एक यूईटी एनवायरमेंट है ही नहीं समझो। एग्जाम्पल यहाँ पे बीटा टेस्टिंग या प्रोडक्ट बेस्ड ये जो समझो आप ऐसा एप्लीकेशन है एडोब रीडर, इनका रेवेन्यू क्या है? एडोब रीडर का रेवेन्यू कितना होता होगा? इतना ज्यादा नहीं है ना। वो कंपनी अलग, कंपनी छोड़ दीजिए, कंपनी बहुत बड़ी है, बट इस एप्लीकेशन के थ्रू उतना रेवेन्यू ज्यादा है क्या? नहीं है, बराबर। ऐसे ज्यादा रेवेन्यू ना होने की वजह से ये एप्लीकेशन में ना, जैसे मैंने बोला था कि हमारे प्रोजेक्ट में 4 एनवायरमेंट है। मैंडेटरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में 4 होंगे, मैंडेटरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में 4 होंगे, कहीं कहीं पे एक एनवायरमेंट होता ही नहीं है। तो कौन सा नहीं होता? यूवीटी नहीं होगा। वो कंपनी वाले बोलेंगे भाई डायरेक्टली आप क्या करिए, डेवलपमेंट करिए, टेस्ट करिएगा और डायरेक्टली उसको प्रोडक्शन में भेज दीजिए, यूवीटी रखेंगे नहीं, यूवीटी नहीं होता। तो प्रोडक्शन में जो भी इशू आएंगे, यानी
बीटा टेस्टिंग जैसे आप बोलते हो, समझो यहाँ पे एंड यूजर कुछ यूज कर रहे हैं या हमने क्लाइंट को बस क्लाइंट को दिया टेस्ट करने के लिए, क्लाइंट के इधर एक सिंपल सा एनवायरमेंट रहता है, उसको यूएटी नहीं बोलते, सिंपल सा एनवायरमेंट उसने टेस्ट किया, उसको लगा यार बहुत सारे डिफेक्ट है, एंड यूजर ने भी बहुत सारे डिफेक्ट रेज कर दिए, तो सभी डिफेक्ट को कलेक्ट करता है। अगर कुछ नया अपडेट एप्लीकेशन में देना है तो नया अपडेट प्लस ओल्ड डिफेक्ट दोबारा कंपनी को देते हैं, कंपनी डेवलप करती है, टेस्ट करती है, क्लाइंट को सैंपल के लिए भेज देती है और प्रोडक्शन में भेजा जाता है। तो ये चीज होती है आपके यूएटी एनवायरमेंट। क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट टर्म है टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी। टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे कुछ टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है, तो यहाँ पे एक कुछ टर्म्स आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उसमें ऐसे टर्म्स हैं that what is the error, एरर क्या होता है, एरर क्या होता है? तो आपको एरर कहाँ पे, आपने वर्ड कहाँ पे सुना होगा, कहाँ पे देखा आपने एरर वर्ड? ये प्रोग्रामिंग करते हुए, प्रोग्रामिंग, बराबर। इफ वी फाउंड या if developer has done wrong coding, if developer has done wrong coding, then he will found mistakes in code, and it is called as error। यानी डेवलपर ने जो मिस्टेक किया है उस मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। कि डेवलपर ने कोड, क्योंकि ऑब्वियसली करता है, कोडिंग में कुछ गलत हुआ तो हमें जो चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं एरर। दूसरा रहता है डिफेक्ट। ये डिफेक्ट और बग में चेक करिए, डिफेक्ट ऊपर है या बग में भी शायद से यहाँ पे बग होगा। बग क्या होता है? इफ टेस्टर हैज फाउंड एरर इन द फंक्शनैलिटी, समझो एक फंक्शनैलिटी वर्किंग नहीं है और उसमें हमें एरर मिला। इफ टेस्टर फाउंड एरर इन द फंक्शनैलिटी देन इट इज कॉल्ड एज बग, तब उसको हम बग बोलते हैं। तो रहता है डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या रहता है? इफ developer accept this bug, then it is called as a defect। अगर डेवलपर ने उस डिफेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, समझो अपने फंक्शनैलिटी में एरर था, ठीक है, वो फंक्शनैलिटी डेवलपर ने डिप्लॉय कर दी एज इट इज एसआईटी एनवायरनमेंट में। एसआईटी में हम उसको चेक कर रहे, चेक करते समय समझ में आया कि एप्लीकेशन में एरर है तो उसका हम बग रेज करेंगे। अगर हमने बग रेज किया तो हम बग रेज करते हैं जीरा और अजूर देवा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में, या उसको बग ट्रैकिंग भी टूल बोला जाता है। तो उस टूल में हम रेज करेंगे और ये डेवलपर को इन्फॉर्म करेंगे। डेवलपर विल एक्सेप्ट दिस बग, जब डेवलपर उस बग को एक्सेप्ट करेगा तब उस बग को एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। और आखिरी में रहता है इशू। इशू क्या रहता है? समझो इफ जो भी हम चले था आखिरी में डिफेक्ट, इफ these defects बोलते हैं उसको इज मोर क्रिटिकल, या ऐसा बोल सकते हैं उसको कि द डिफेक्ट विच स्टॉप टेस्टिंग एक्टिविटी, जो डिफेक्ट आपका टेस्टिंग एक्टिविटी स्टॉप कर सके उस डिफेक्ट्स को, देन दीज डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एज इश्यूज, उसको आप इश्यू बोलते हैं। तो ऐसे सिनेरियो ऑकर होते हैं जब हम कोई भी रिस्पेक्टिव चीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऐसे रिस्पेक्टिव चीज हम परफॉर्म करते हैं, तो इसको ऐसे 4 टर्म है जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। छोटा सा डिफरेंस है दोनों में,
एप्लीकेशन में रॉन्ग कोडिंग हुआ तो इसको एरर बोलेंगे। टेस्टर अगर कोई टेस्टर कोई फाउंड करेगा एरर उसको बग बोलेंगे। डेवलपर उस बग को एक्सेप्ट करेगा तो डिफेक्ट बोलेंगे। और ये अगर क्रिटिकल डिफेक्ट होता है, मेजर डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से टेस्टिंग स्टॉप हो रही है तो उसको हम इश्यू बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये होगी टेस्टिंग के टर्मिनोलॉजी। टेस्टिंग के अप्रोचेस या अप्रोच बेस्ड टेस्टिंग भी इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या है, अभी तक जो हमने टेस्टिंग पढ़े ना वो टेस्टिंग पढ़े थे हमने, ये टेस्टिंग नहीं है। याद रखिए, कुछ मैं नाम यहाँ पे लिख के देता हूँ। मंकी टेस्ट, ये जो टेस्टिंग है एक्चुअली टेस्टिंग नहीं है, ये अप्रोचेस है। एडॉक बेस्ड टेस्टिंग और आखिरी है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। ये टेस्टिंग नहीं है, ये अप्रोच बेस्ड। अप्रोच यानी क्या होता है, सिनेरियो बेस्ड कंडीशन कि भाई ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे क्या परफॉर्म करना है, ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे क्या परफॉर्म करना है। तो ऐसे जो हम सिनेरियो परफॉर्म करेंगे उसको हम बोलेंगे रिस्पेक्टिव मंकी टेस्टिंग, एडॉक टेस्टिंग या एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। तो क्या होता है टेस्टिंग अप्रोच में, ये एक अप्रोच है मंकी टेस्टिंग। ये कोई टेस्टिंग नहीं है, ये मंकी टेस्टिंग अप्रोच है। इस अप्रोच में होता क्या है, क्या परफॉर्म करते हैं समझो। इफ we have more test cases, जो आपके पास बहुत सारे टेस्ट केस है, 200 टेस्ट केसेस है। If we have more test cases and we have less time for execution, हमारे पास टेस्ट केसेस से बहुत ज्यादा है बट we have less time for the execution, then we will perform we will follow monkey testing approach। उस टाइम पे हम मंकी टेस्टिंग अप्रोच फॉलो करते हैं। अब एग्जैक्टली क्या होता है इसमें, तो इसका की है इसलिए हमने आगे करते हैं। और उस प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ कि आपको टेस्ट केसेस 100 से 200 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं और उसके लिए आपको बहुत कम टाइम, वी हैव लेस टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन, बहुत कम टाइम दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए। उस टाइम पे आपको अप्रोच क्या होगा या उस टाइम पे आप क्या फॉलो करेंगे, तो उस टाइम पे हम मंकी टेस्टिंग अप्रोच फॉलो करेंगे। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है, और इफ वी हैव टू move the build within short duration from SIT to UAT or to the production, to the prod। आपको क्या करना है, we have to move the build within the short duration। अब within the short duration यानी समझो आपको 1 घंटे में भेजना है, 1 घंटे में। और यहाँ पे टेस्ट के एग्जीक्यूशन वी हैव लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, ये समझो आपके पास 1 से 2 घंटा ही बचा है, 1 to 2 आवर। हमने आज का डिवाइस प्लान पढ़ा है, तो 1 से 2 घंटे में होता है क्या टेस्टिंग पूरा पॉसिबल करना? पॉसिबल होता है क्या 1 से 2 घंटे में करना? नहीं। हमने जो आदल का डिवाइस प्लान पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था कि अगर हम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं, उस टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 1-1 दिन लगता है, कभी कभी तो हमने 2-2 दिन देखा था। तो यहाँ पे 2 घंटे में पॉसिबल होगा क्या? नहीं होता। कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे वो बिल्ड तुरंत चाहिए, 1 घंटे के अंदर चाहिए। या कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको बिल्ड तुरंत 1 घंटे के अंदर डिप्लॉय करना है SIT और UAT में, अदरवाइज SIT से UAT में और या SIT से डायरेक्टली प्रॉड, ऐसा भी होता है। और दूसरा सिनेरियो, ऐसा भी सिनेरियो ऑफर हो सकता है if you got build at last moment from the developer। लास्ट मोमेंट पे मिला यानी समझो आपको फ्राइडे, यानी लास्ट फ्राइडे यानी कौन सा डे हमारा, समझो लास्ट स्प्रिंट का डे है, लास्ट
क्या बोलेंगे, लास्ट वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग डे ऐसा नहीं, स्प्रिंट का लास्ट डे, स्प्रिंट लास्ट डे से लिख देता हूँ, स्प्रिंट लास्ट डे, स्प्रिंट लास्ट डे। हमारा जो स्प्रिंट का है, क्योंकि हमारी फ्राइडे को खत्म होती है ना, समझो फ्राइडे को लास्ट डे में और एकदम आखिरी में 6-7 बजे डेवलपर से हमें बिल आया, स्प्रिंट लास्ट डे फ्राइडे एट 5 PM। 6 बजे तो हमारा ऑफिस खत्म होता है 10 से और डेवलपर ने क्या किया, वी गॉट द बिल्ड कौन सा, वी गॉट द बिल्ड फॉर टेस्टिंग, वी गॉट द बिल्ड फॉर टेस्टिंग एट लास्ट मोमेंट। और वो कब मिला है, स्प्रिंट इन ए स्प्रिंट एट लास्ट डे, स्प्रिंट लास्ट फ्राइडे एट 5 PM। और वहां पे हमें मिला है फ्रॉम द डेवलपर एंड वी हैव टू डू द एग्जीक्यूशन, राइट, वी हैव टू डू एग्जीक्यूशन। और उस बिल्ड के ऊपर हमें टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं। एक तो फ्राइडे में सबसे आखिरी का दिन है बराबर, और उसमें भी डेवलपर अगर इस मोमेंट पे हमें बिल्ड भेजता है तो हम टेस्टिंग कर सकते हैं क्या, फिर पॉसिबल होगी क्या करना, नहीं सर। होगा क्या, नहीं क्योंकि ये ऐसे सिनेरियो, ये 3 सिनेरियो जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कोई भी एक सिनेरियो पूछा जाएगा कि आपके पास बहुत सारे टेस्ट केसेस है, बहुत कम टाइम है, या आपको डेवलपर ने बिल भेजा है समझो लास्ट स्प्रिंट है, या अभी लास्ट मोमेंट पे भेजा है, 1 घंटा है आपके पास बचा है टेस्टिंग के लिए, तो कौन सा टेस्टिंग फॉलो करेंगे, या सॉरी आपका अप्रोच क्या होगा, या आपको बिल्ड भेजना है यूवीटी या प्रोडक्शन में, और उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला बस आपके पास 1 घंटा है, तो कौन सा टेस्टिंग या क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। तो उस टाइम पे वी आर फॉलोइंग द अप्रोच, इट इज नॉट अ टेस्टिंग। पहले बता रहा हूँ ये मंकी टेस्टिंग नहीं है ये अप्रोच है। इस अप्रोच के थ्रू हम इस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, अप्रोच बेस्ड टेस्टिंग फॉलो करेंगे। सो वी आर फॉलोइंग द मंकी टेस्टिंग अप्रोच, ये टेस्टिंग फॉलो करेंगे। मंकी टेस्टिंग क्यों नाम गिरा है, मंकी क्या करता है, क्या करता है, जंपिंग जंपिंग करता है, एक जगह पे स्थिर रहता है क्या वो, नाही म्हणतात ना लहान लहान पोराला बघा माकडासारखं झालंच का रे, इकडून तिकडे उड्या मारते, म्हणतात का नाही बोलते कि नहीं से, तो सुना होगा कि नहीं आपने, कॉन्वेंट के बच्चे होंगे तो आपको आपने कभी ऐसे वर्ड सुना नहीं होगा, बट जो मराठी बंदा रहता है उसने सुना होगा, बंदर जैसे क्या जंप कर रहा है इधर के उधर, ठीक है। तो क्या होता है इन मंकी अप्रोच, हमारे पास तो बहुत सारे टेस्ट केसेस है, बट हम उसको एग्जीक्यूट जब करेंगे तो हम सिक्वेंशियली फॉलो नहीं करते, आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। समझो हमने लिखा है 40 टेस्ट केसेस, तो पहला अभी एग्जीक्यूट करेंगे, दूसरा करेंगे, बाद में तीसरा, बाद में चौथा, ऐसा नहीं होता। हम भी 40 में से कहीं पे भी कौन सा भी टेस्ट केस ले लेंगे, उठा लेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, और उसमें से कौन सा एग्जीक्यूट, मंकी टेस्टिंग अप्रोच, टेस्टर विल एग्जीक्यूट ओनली हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस, हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस या कोर फंक्शनलिटी रिलेटेड टेस्ट केसेस। हम वही टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे हाई प्रायोरिटी डिफाइन करती हो, या वही टेस्ट केसेस हम एग्जीक्यूट करेंगे जो टेस्ट केसेस आपके एप्लीकेशंस के कोर फंक्शनलिटी या मेन फंक्शनलिटी के रिलेटेड होते हैं। मंकी टेस्टिंग अप्रोच में वही टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे जो हाई प्रायोरिटी डिफाइन करे या जो कोर फंक्शनलिटी रिलेटेड टेस्ट केसेस डिफाइन करे। बाकी कोई भी फंक्शनलिटी हम नहीं क्या करते, या जो नॉर्मल टेस्ट केसेस उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। अब ये क्या होता है सर ऐसा, तो आपको मैं एक टेस्ट केसेस का बस एक सैंपल डॉक्यूमेंट लिखा जाता हूँ, हम आगे पढ़ेंगे, बट एक सैंपल डॉक्यूमेंट है ये। समझो मेरा टेस्ट केसेस का एक डॉक्यूमेंट है, तो ये मेरा टेस्ट केसेस है। देखिए एक्चुअल में टेस्ट केसेस हम दो जगह पे लिख सकते हैं, एक्सेल में लिख लीजिए या इधर से एक्सेल में भी लिखा जाता है। एक्सेल में अभी बहुत कम लिखा जाता है, बट ठीक है एक्सेल में मैंने तुमको बता दिया। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम टेस्ट केसेस हमने लिखा है, पहला टेस्ट केस, दूसरा टेस्ट केस, तीसरा टेस्ट केस, चौथा टेस्ट केस, पांचवा टेस्ट केस। अब जब हम मंकी टेस्टिंग अप्रोच फॉलो करेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे फॉलो नहीं करते। इसमें से हम देखेंगे प्रायोरिटी वाली, प्रायोरिटी यानी क्या होता है, हम आगे टर्म पढ़ने वाले हैं। प्रायोरिटी यानी एप्लीकेशन का जो मेन फंक्शनलिटी डिफाइन करता हो,
एप्लीकेशन का जो मेन फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी। तो यहाँ पे हम वही टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे जो हाई प्रायोरिटी डिफाइन करती है। तो ये टेस्ट केस हाई प्रायोरिटी डिफाइन करती है, तो ये टेस्ट केस हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ये लो प्रायोरिटी है तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं, उसको स्किप कर देंगे हम। बाद में दूसरा एग्जीक्यूट करेंगे जो हाई प्रायोरिटी डिफाइन करता हो। ये मीडियम प्रायोरिटी है, उसको स्किप कर देंगे। समझो ये हाई प्रायोरिटी आखिरी वाला, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे जो हाई प्रायोरिटी के टेस्ट केसेस डिफाइन करते हो, यानी हाई प्रायोरिटी। अब हाई प्रायोरिटी में यहाँ पे सीक्वेंस कुछ है क्या ऐसा उसमें कुछ सीक्वेंस दिया है क्या कि 1 by 1 एग्जीक्यूट करो? नहीं, जैसे आपको जो टेस्ट केस लगता है वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है, बस इसमें हाई प्रायोरिटी के टेस्ट केसेस से एग्जीक्यूट करना रहता है। तो जो हमारे मंकी टेस्टिंग अप्रोच है, इस मंकी टेस्टिंग अप्रोच में वी आर एग्जीक्यूटिंग ओनली द हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस। और यहाँ पे हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करके जब हमारा टेस्टिंग, क्योंकि समझो 40 लिखे है, जब 50 टेस्ट केस लिखे हैं उसमें हाई प्रायोरिटी के होते ही कितने 5 से 6 या मैक्सिमम 10 या 15 भी अगर देखा जाए तो 10 या 15 टेस्ट केसेस हम 1 या 2 घंटे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी के जो लो प्रायोरिटी मीडियम प्रायोरिटी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जैसे म्हणतात ना, जैसे समझो आपके पास आपको क्या है, एक बोला है कि भाई तुरंत कल एग्जाम है, आपके पास अभी 2 घंटे है, तो आप क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली उस टॉपिक में, और एक पूरे 6 चैप्टर है आपके पास, तो 6 चैप्टर पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे आप? मेन पॉइंट। मेन में क्या करते हैं, लास्ट प्रीवियस एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आए सबसे पहले वही क्वेश्चन पिक करेंगे कि नहीं पढ़ने के लिए? वही करते हैं क्या नहीं? वही करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमारे पास टेस्ट केसेस बहुत ज्यादा है, बहुत कम टाइम दिया है, तो उस टाइम पे हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम मंकी टेस्टिंग अप्रोच फॉलो करेंगे। दिस मंकी टेस्टिंग अप्रोच में ओनली वी आर एग्जीक्यूटिंग द हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस। हम ओनली हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस ही एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसा सिनेरियो हम फॉलो करते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? सर ते हाय प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी ते आपणच ठरवतो का प्रोजेक्ट मॅनेजर ठरवतो? नहीं, टेस्ट केसेस आपण लिहितो म्हणजे आपणच ठरवतो। टेस्ट के आगे एक टर्म है, टेस्ट एक्चुअली डिटेक्ट और टेस्ट केसेस, ये 2 अलग टर्म है। टेस्ट केसेस खुद हम लिखते हैं तो टेस्ट केसेस की प्रायोरिटी खुद हम डिसाइड करते हैं। डिफेक्ट की भी प्रायोरिटी सेवरिटी टर्म होती है, ठीक है। डिफेक्ट की प्रायोरिटी हम डिसाइड नहीं करते, हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद वही टॉपिक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये पहला अप्रोच हो गया। जहाँ पे अप्रोच है याद रखिए, ये कोई टेस्टिंग नहीं है, ये कोई टेस्टिंग नहीं है, ये बस अप्रोचेस है। कंडीशनल बेस्ड टेस्टिंग आप इसको बोल सकते हैं, कंडीशनल बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड टेस्टिंग। कैसा ऐसा सिचुएशन ऑकर हुआ तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम ऐसी चीजें परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक दूसरा रहता है एडॉक टेस्टिंग। एडॉक टेस्टिंग अप्रोच लिख सकते हैं, उसको बेस नहीं बोलेंगे, एडॉक टेस्टिंग अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है एडॉक टेस्टिंग में, कंसीडर इफ वी हैव लेस टेस्ट डेटा फॉर टेस्टिंग, if we have less test data for the testing and we have more knowledge about the functionality, then we will follow, तब हम क्या करते हैं, we will follow ad-hoc testing approach, ad-hoc based ad-hoc based testing approach। ये अप्रोच हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ad-hoc based testing approach में ऐसा क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, if we have less knowledge, if we have less test data for the testing, यानी आपके पास टेस्टिंग के लिए बहुत सारा कम डेटा है, आपको टेस्टिंग के पास बहुत कम डेटा है, बट आपको उस फंक्शनलिटी का अच्छा खासा नॉलेज है, आपको उस फंक्शनलिटी को अच्छा खासा नॉलेज है, तो उस टाइम पे कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे, तो एडॉक बेस्ड टेस्टिंग अप्रोच फॉलो करेंगे। क्या होता है यहाँ पे, if we have the less test data for the testing and you have the more knowledge for the application, तो एग्जांपल पकड़ लीजिए, कोई भी आप समझो फ्लिपकार्ट है,
फ्लिपकार्ट में आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है या आपको वहां पे एक समझो पेमेंट टैब टेस्ट करना है, पेमेंट टैब यहाँ पे आपको फंक्शनलिटी चेक करना है और वहां पे आपको चेक करना है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये फंक्शनलिटी चेक करना है। तो आपको लगता है क्या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए हमें कम से कम इंडियन एप्लीकेशन है समझो, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए हमारे पास ऐसे 15-20 कार्ड आपको दिए जाते हैं क्या, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ठीक है, एसबीआई, येस बैंक, कैनरा बैंक, ऐसे सभी बैंक के आपको कार्ड दिए जाते हैं क्या रियल टेस्टिंग में करते समय, एसआईटी में टेस्ट करते समय? तो नहीं मिलते। आपको पेमेंट टैब भी टेस्ट करना है तो वहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड 10-15 कार्ड नहीं मिलते, वहाँ पे 2 या 3 ही डमी कार्ड आपके पास होते हैं, डमी कार्ड प्रेजेंट इन द एसआईटी एनवायरनमेंट। एसआईटी एनवायरनमेंट में आपके पास डमी कार्ड अवेलेबल रहते हैं, तो आपको उस 2 डमी कार्ड को ही लेके टेस्ट करना पड़ता है पेमेंट फंक्शनलिटी इज वर्किंग करेक्ट और नॉट। आपको 2 डमी कार्ड का ऐसा नंबर रहता है, डमी कार्ड के कुछ ऐसे नंबर रहते हैं 400002341000, ऐसे कुछ डमी कार्ड्स के नंबर रहते हैं, 16 नंबर रहते हैं ना, 12 रहते, कितने रहते हैं? 12 रहते हैं ना, हाँ, ऐसा एक नंबर है, तो ऐसे डमी कार्ड नंबर रहते हैं, 16 रहते हैं क्या? ओके ठीक, ये 16, तो ऐसे मेरे एक डमी कार्ड है ये, और ये डमी कार्ड हम यूज करते टेस्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे एक डमी कार्ड से आप फंक्शनलिटी को प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं क्या? आपको पेमेंट टैब चेक करने के लिए दिया है, आइदर पेमेंट टैब वर्किंग करेक्ट या नॉट, तो उसके लिए आपके पास डमी एक ही कार्ड है, तो एक कार्ड से आप कॉन्फिडेंस बता सकते हो क्या नो इट इज वर्किंग फाइन बोल सकते हैं क्या? पॉसिबिलिटी होती है क्या? नहीं हो सकती ना, क्योंकि एड हॉक टेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा, एक टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हम मल्टीपल टेस्ट डेटा यूज करते हैं, तो हम अगर पहली बार इसको टेस्ट करेंगे, जिस एप्लीकेशन का हमें समझो नॉलेज भी नहीं है और बहुत कम टेस्ट डेटा है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। फिर एड हॉक टेस्टिंग अप्रोच कौन फॉलो करता है? कंपनी में सीनियर टेस्टर परफॉर्म करता है, ठीक है। दिस एड हॉक टेस्टिंग अप्रोच विल फॉलो बाय एक्सपीरियंस पर्सन इन द टेस्टिंग। जिस बंदे ने ऑलरेडी क्या किया है, समझो आपका पेमेंट टैब है, और जिस बंदे ने ऑलरेडी पेमेंट या कोई ऑलरेडी जिसका जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, समझो पेमेंट डोमेन का ही है, कोई टेस्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिनका एक्सपीरियंस ही पेमेंट डोमेन में है, मैंने अभी तक उन्होंने बैंक कंपनियों में काम किया है, HSBC, बार्कलेज, ठीक है, बाद में टच बैंक, ठीक है, बजाज फिनजरो, ऐसे पेमेंट कंपनी में काम किया, तो वहां पे ज्यादा काम पेमेंट डोमेन का ही होता है। और जिस बंदे को एक्सपीरियंस है इन द टेस्टिंग, किसके रिलेटेड? अबाउट दैट फंक्शनलिटी या अबाउट दैट डोमेन नॉलेज, उसका उस रिस्पेक्टिव चीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उस टाइम पे ना वो जो टेस्टिंग फॉलो की जाती है, वो टेस्टिंग बस उसी बंदे को दी जाती है, उसके अलावा कोई दूसरा टेस्टर परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? बाकी वाले टेस्टर को उतना नॉलेज नहीं रहता ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए वो टेस्टिंग उनकी नहीं दी जाती। और कौन करता है फिर ऐसे टेस्टिंग को? वही बंदा करता है जिसका ऑलरेडी उस डोमेन में नॉलेज है, इसलिए उसको बोला जाता है एड हॉक टेस्टिंग अप्रोच। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस बंदा है उस डोमेन का, वही बंदा टेस्ट डेटा भले कम हो, स्टिल वो टेस्टिंग क्या कर सकता है, उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी, गलत हो गई क्या? ठीक है, इसमें सही कर देता। ठीक, अभी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में दूसरा सिनेरियो, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कब फॉलो किया जाता है? समझो इफ वी हैव लेस नॉलेज, समझो इफ वी हैव लेस नॉलेज अबाउट द फंक्शनलिटी, इफ वी हैव लेस नॉलेज अबाउट द फंक्शनलिटी, उस फंक्शनलिटी के बारे में हमारे पास बहुत कम नॉलेज है, ठीक है, उस फंक्शनलिटी के बारे में, एंड वी हैव मोर टेस्ट डेटा, बट आपके पास टेस्ट डेटा बहुत ज्यादा है टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, तो उस टाइम पे हम जो फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अप्रोच। तो उस टाइम पे हम ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अप्रोच फॉलो करते हैं।
एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अप्रोच से क्या, जैसे आपने एक्सप्लोर खुद को ऐसा अपने टर्म सुना होगा, एक्सप्लोर करना यानी क्या होता है, कोई पढ़ा होगा ना, अरे मैं खुद को आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो क्या होता है एक्सप्लोर करना, यानी क्या होता है, इंग्लिश वर्ड है ये, न्यू चीजें ट्राई करना। नई चीजें ट्राई करना, जो चीजें हमें पता नहीं उसके बारे में जानना, ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ वी हैव लेस नॉलेज अबाउट दैट फंक्शनैलिटी, जो फंक्शनैलिटी हमें दिया गया है उसका बहुत कम नॉलेज, एंड वी हैव मोर टेस्ट डेटा फॉर द टेस्टिंग, बट टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारा टेस्ट डेटा है। या इसी को अलग वे में पूछा जाता है, इफ योर कलीग is on leave and you have to do the testing, for that functionality, for that user story या for that functionality। समझो आप में काम करो, उसमें कलीग भी रहेंगे, जैसे हमने 4 टेस्टर सुने, देखिए हमारे प्रोजेक्ट में 3 या 4, उसमें से समझो हम काम कर रहे पेटीएम के रिचार्ज मॉडल में, और हमारा एक टेस्टर है जो पेटीएम का मूवी टिकट या पेटीएम मॉल में काम कर रहा है। समझो हमें तो हमारी यूजर स्टोरीज पता है रिचार्ज मॉडल की, तो हम करेंगे, बट समझो स्प्रिंट में हमारा एक कलीग था, वो कलीग छुट्टी पे चला गया, तो सब मेडिकल रीजन, वो आज बीमार है, 2 दिन नहीं आ सकता, बट स्प्रिंट में ऑलरेडी हमने डिसाइड किया था स्प्रिंट प्लानिंग में कि हमें इस स्प्रिंट में 10 से 14 यूजर स्टोरीज कंप्लीट करने वाले हैं। अब ऑलरेडी हमने डिसाइड दिया है, क्लाइंट को बोला है, तो क्या होता है, समझो एक टेस्टर अभी 2 दिन छुट्टी पे मेडिकल लीव पे है, तो उसकी यूजर स्टोरी तो बच जाएंगी ना, तो उसकी यूजर स्टोरी को कौन करेगा फिर? तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, देखता है टीम में काम किसको कम है, वो देखता है टीम में काम किसको कम है, और उस बंदे को बोलता है ये यूजर स्टोरी आप टेस्ट कर लो, वो यूजर स्टोरी आप टेस्ट कर लो, ऐसे उसको बोलता है। तो वहां पे क्या हो गया, हमें उस यूजर स्टोरी का नॉलेज है क्या? उतना नहीं है। हमें उस पता भी पेटीएम एप्लीकेशन में मूवी टिकट का बस मॉडल बन रहा है, इतना ही पता है, बस उसका हमें ज्यादा नॉलेज है क्या? नहीं है। बट टेस्टिंग के लिए टेस्ट डेटा बहुत सारा है डेटाबेस में, तो हम उस टाइम पे जो अप्रोच फॉलो करते हैं उस अप्रोच को बोलते हैं हम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अप्रोच। या जैसे इसको 2 तरीके से पूछा जाता है, if you have less knowledge about the functionality and you have the more test data for the testing, or if your colleague is on the leave and you have the more and you have to test that user story, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला है। तो उस टाइम पे हम कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अप्रोच फॉलो करते हैं। एक्सप्लोरेटरी में क्या करेंगे, जो चीज हमें नहीं पता, इन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अप्रोच हम क्या करेंगे, जो चीज हमें नहीं पता उसके बारे में हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, या हम उसके बारे में ज्यादा टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, सो हियर टेस्टर विल एक्सप्लोर द एप्लीकेशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर कैसे करना, टेस्टर विल एक्सप्लोर द फंक्शनैलिटी बाय पासिंग मल्टीपल टेस्ट डेटा। हम यहाँ पे एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, यानी जानेंगे समझेंगे कि फंक्शनैलिटी कैसे वर्क की है, और उसके लिए क्या करना रहता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, एप्लीकेशन में मल्टीपल टेस्ट डेटा पास करके देखो। एग्जाम्पल समझो अभी मेरा ये पेटीएम एप्लीकेशन पकड़ लीजिए, मैं ओपन करने दीजिए। चलो ये पेटीएम एप्लीकेशन है, इसमें समझो रिचार्ज मॉडल ही मुझे टेस्ट करना है। एक्चुअली आप काम कर रहे हो मूवी टिकट पे, पकड़ लीजिए पेटीएम प्रोजेक्ट में मूवी टिकट पे आप काम कर रहे हो, और आपको भी ये रिचार्ज मॉडल टेस्ट करना है। तो ये रिचार्ज मॉडल टेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा अगर ये टेस्ट करना है? ये टेस्ट करना है तो आपको समझो पता नहीं कैसे वर्क होता है, तो जो रैंडमली आपके पास टेस्ट डेटा ऐसा पास करके देखिए, 10 डिजिट का आपने एंटर किया, तो ऑटोमेटिक उसने पहले दिखा दिया, अरे ओके ये मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ता है, ऐसे आपको समझ में आ रहा है? ओके ये मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने एयरटेल का दिया तो एयरटेल सेलेक्ट करिए, सर्कल सेलेक्ट करिए। ओके अभी समझ में नहीं आया तो और एक बार दोबारा एंटर करके देखिए, दोबारा आपने ऐसा कुछ एंटर करके दिया, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। ये कैसे सेलेक्ट हो गया? आपने तो डेटाबेस से लिया था फोन का हरियाणा का नंबर, और आपने बोला ये ऑटोमेटिक क्यों सेलेक्ट हो गया? आपको समझ में नहीं आया, दोबारा एंटर करके देखिए। टेस्ट डेटा बहुत सारा अपने पास, एंटर किया,
भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर कोई वैलिड मोबाइल नंबर हो, वैलिड ऑपरेटर, वैलिड सर्कल का हो, तो ऑटोमेटिक उसके लिए बैकएंड से ऑपरेटर और सर्कल आता है, ये एपीआई से आता है। ये हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे। ओ यानी अगर वैलिड मोबाइल नंबर हो तो ऑटोमेटिक आता है। अगर कोई नंबर पोर्टेबल है या कोई नंबर समझो चेंज हुआ है, ठीक है, या कोई मोबाइल नंबर अभी नया आया है, तो उसको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे नंबर मैंने पोर्ट किया है, तो ये नंबर में मुझे क्या दिखा रहा है, ओ यू हैव टू सेलेक्ट द मैन्युअली, तो मैन्युअली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको कब समझ में आती है, जब आप इस फंक्शनलिटी के ऊपर मल्टीपल टेस्ट डेटा पास करेंगे, तो इस फंक्शनलिटी का हमें नॉलेज आ जाता है। और उस टेस्टिंग अप्रोच बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अप्रोच, जहां पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, यानी गेनिंग द नॉलेज, हम गेन करते हैं, गेन द नॉलेज। हम उस नॉलेज को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और नॉलेज कैसे गेन कर रहे हैं, बाय पासिंग द मल्टीपल टेस्ट डेटा, क्योंकि हमें उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो छोड़ना ऐसे नहीं होता, क्योंकि कंपनी में ऐसा सिनेरियो होता है, आपका टेस्टर गया छुट्टी पे, आपको बोला है भाई टेस्टिंग करके देख लो, तो उस टाइम पे हमें ऐसे चीजें हमें परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ओके, ठीक है। तो सुन, आज के लिए हम इसे देखेंगे, इसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट बच जाता है प्रायोरिटी एंड सेवरिटी, हम कल देखेंगे। सर एक डाउट था। सर आपने बता दिया कि अगर डिफेक्ट मोर क्रिटिकल है तो उसे हम इशू कहते हैं, ओके। और उसमें हम क्या करते हैं कि स्टॉप डिफेक्ट, ओके, विच स्टॉप टेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, तो वो मतलब क्या होता है? टेस्टिंग बंद हो गया, अभी टेस्टिंग नहीं कर सकते इसके आगे। क्या जैसे फ्लिपकार्ट का दिखाया था आपको कल जो चल रहा था, समझो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एक टेस्ट करना है फंक्शनलिटी, ये फैशन वाली। तो हमने फैशन वाले बटन पे क्लिक किया। जैसे हमने फैशन वाली, उस फैशन में एक नया मॉडल ऐड हुआ है, कुछ तो मॉडल ऐड हुआ है, कुछ नया फीचर ऐड हुआ है, वो टेस्ट करना है। तो देखिए जैसे मैंने उसके ऊपर क्या आया है, हमें ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर आ रहा है। इसके आगे हम कुछ टेस्टिंग कर पा रहे क्या अभी? इसके आगे कुछ जा पा रहे हैं क्या हम? नो सर, नो। नहीं। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? यस। तो ऐसी चीजों को क्या करेंगे हम? मतलब सर हम इसे इशू और रोड ब्लॉक भी कह सकते हैं। इसको इश्यू बोलेंगे, रोड ब्लॉक एक्चुअली डिफेक्ट के टाइप्स है, शो स्टॉपर, ब्लॉकर, डिफेक्ट। तो इसको बोला जाता है शो स्टॉपर या ब्लॉकर डिफेक्ट, जो टेस्टिंग की एक्टिविटी स्टॉप करती है। वो उसको हम बोलते हैं इश्यू आ गया, कि भाई बहुत बड़ा इश्यू है कि हम उसके आगे टेस्टिंग कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसको इसीलिए उसको इश्यू टर्म बोला जाता है। ठीक है, ओके सर। सर ओके। मंकी टेस्टिंग अप्रोच में अल्टरनेट टर्म सर। सर जब डेवलपर डिफेक्ट एक्सेप्ट करता है तो उसे बग कहा जाता है। उल्टा हो गया क्या? मैंने एक बार चेक करी यहाँ पे क्या होता है। पीडीएफ में जो मैंने दिया, पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें एक बार चेक करके ऊपर यहाँ पे बढ़ गया क्या? यहाँ पे बढ़ गया क्या? ओके। और यहाँ पे डिफेक्ट है, बराबर ऐसे ही है। हाँ। तो ऊपर नीचे कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसका कंफ्यूजन हो रहा है। सर एक डाउट प्लीज। सर मंकी टेस्टिंग अप्रोच में आपने बोला ना हाई प्रायोरिटी, अगर टाइम कम है तो हाई प्रायोरिटी हम लेंगे। तो यूएटी और प्रोडक्शन में अगर वो लो प्रायोरिटी और जो मीडियम हमसे छूट गई है वही उन्होंने रेस किया, तो एपोलॉजी मेल तो टेस्टर को लिखना पड़ेगा ना सर। तो इस केस में फिर टेस्टर को कुछ रिलैक्सेशन मिलता है क्या? वैसे नहीं होता,
यहाँ पे जो हम भेजेंगे ना उसको कंडीशनल साइन ऑफ बोला जाता है। हम यहाँ पे जो चीज फॉलो करेंगे उसको बोलेंगे कंडीशनल साइन ऑफ। कंडीशनल साइन ऑफ में ये कभी नहीं होता। कंडीशनल साइन ऑफ एक टर्म है, आगे पढ़ेंगे हम मैनुअल 2 में। कंडीशनल साइन ऑफ में टेस्टर ने जो टेस्ट किया है उसने ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजर इन्फॉर्म करता है वहां। प्रोजेक्ट मैनेजर इन्फॉर्म करके देता है कि भाई प्रोजेक्ट रिस्पेक्टिव उस टीम को, यहाँ पे हमने जो टेस्टिंग किया है वो एडॉक बेस्ड सॉरी मंकी बेस्ड टेस्टिंग है, जहाँ पे हम ओनली हाई प्रायोरिटी के टेस्ट के सामने एग्जीक्यूट, लो मीडियम नहीं किया। तो इसका अगर कोई डिफेक्ट आता है तो मे भी हम उसको अगले इसमें फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ने बोला है कि हमें जल्दी चाहिए, इसके लिए हम ये फॉलो करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके तो सुन, आज का हम इतना देखेंगे, बच्चा वाला सेशन हम कल का होता है। ठीक, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय। Yes, sir. ओके बाय।